Welcome to the channel Easy Trick for the Computer Science student and as well as those students who learn something new in the computer science field because that particular field is very popular in the future, relatable with the artificial intelligence, and in the past, present and future is very good with this information technology with the internet topics. So this is the next part of the internet topics, that is the internet relay chat. The previous part of the internet topic, that is the telnet, link available into the description box. So those students who don't see that particular part, kindly see that part, and after that you will enter into the relay chat option, because internet relay chat is the very messenger service for the good and the security purpose chatting availability, because at every platform like a social platforms, WhatsApp, messengers, any other Instagram or any other part availability, but this is the different, and the internet relay chat is the different part availability under the text based chat system for instant messaging, and that particular is designed for the group communications, discussion forums, like channels, but also allow that one-to-one communication via the private messages as well as the chat messages and data transfer, including the file sharing also. So the international standard under availability of the regularization of the license under the internet relay chat is the RFC 1459, and in the that was introduced into the 1988 by the Yako Ukrainian by the person. The first IRC server Tolleson is under the Sun3 server that is displayed into the computer center of the University of Olo. That is the MCQ questions for your futures. The name is of the university is the University of Olo, and the chat process works on that particular university with the client server networking model. So we already discussed about the client server networking model, and the user connects into that particular client server architecture model with the internet relay chat with the web application and the standalone desktop programs with the IRC cloud services, MIRC, and any other. So the internet relay chat application we was already discussed in the part that particular, the person name is the Joko Ukrainian and the Finland, जिन्होंने ये इंटरनेट जो रिले चैट आपका निकाला था, जो यूज होता है हमारा कन्वीनियंट इमीडिएट वे कम्युनिकेट करने का किसी भी टॉपिक के ऊपर। मैंने जैसे अभी बोला आपको कि डिस्कशन फॉर्म्स के लिए इसको बनवाया गया है। डिस्कशन फॉरम्स में जो चैनल्स में आप बात करते हो, जैसे कोई भी किसी कंट्री को लेकर कोई टॉपिक चल रहा हो, उस टॉपिक पे आपने कोई डिस्कशन करनी है, तो वहाँ पे डिस्कशन फॉरम्स बने होंगे, उसमें जो भी यूजर्स एंटर होंगे वो डेफिनेटली एक रिकमेंडेड यूजर्स होंगे जिनकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जैसे ये एक यूनिक आईडी आपके कंट्री में अवेलेबल है, एक यूनिक आईडी मांगी जा सकती है जिसमें बहुत सारे पीपल और ओवर वर्ल्ड से आपके साथ जुड़ सकते हैं। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहोगे वो रिवील नहीं होगी इन द डिस्कशन फोरम। हो भी जाती है तो दैट इज द प्राइवेट बेसिस, तो आपको कोई भी होल्ड इंडिविजुअल कन्वर्सेशन विद द समवन आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो आपकी अपनी एक परसेप्शन होगी कि आप कोई अलग से काम करना चाहते हो कि नहीं। सो 60% ऑफ द यूजर्स जो इसमें है वो जो वो जुड़े थे हमारे, जो सबसे पहले, क्योंकि चैटिंग का कोई मैसेजेस का मैसेंजर होता नहीं था जब ये आया था 1988 में, बहुत सिक्योर था बिकॉज इट्स द मॉडल बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, और इसकी जो यूनिक्स वर्क स्टेशन के ऊपर काम किया गया था। बाद में ये सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर्स, मैकिंटोश, यूनिक्स वर्क स्टेशन हर एक के साथ वर्किंग करना शुरू हो गया, और मेजर काम इसका फिर शुरू हुआ कि जब इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ इसको जोड़ा विद द यूनिक्स वर्क स्टेशन, तो उस टाइम पे 2003 में जो 60% यूजर्स थे वो पीछे हट गए, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उस टाइम के ऊपर हमारी प्राइवेसी को रिवील किया जाए। सो 100 IRC नेटवर्क्स हैव मोर देन 500,000 यूजर एट अ टाइम जो यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी मार्क है, आप फेक प्रोफाइल्स नहीं बना सकते। ग्लोबल IRC सर्वर नेटवर्क पे आप होते हो तो चैटिंग का प्रोसेस जो है वो टाइप वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वर जब कोई टाइप, जैसे आप गूगल सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हो तो डिपेंड करता है ना वो आपको किस तरह का डेटा परफॉर्मेंस में देता है, सेम एज द पार्ट ऑफ द चैनल चैटिंग की जाती है।
जिसमें रीड एंड रिस्पॉन्ड मैसेजेस आप करते हो, काइंड ऑफ चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग भी है। अगर आप ऑनलाइन हो तो फोरम पे कोई डिस्कशन चल रही है, आप और ऑनलाइन भी उसके साथ दे सकते हो। एंड यू कैन क्रिएट द स्पेशल लिस्ट ऑफ योर बडीज, मीन्स आप अपने पर्सनल अकाउंट होल्डर्स, आपके फ्रेंड सर्कल को भी एक फॉरम में डाल सकते हो और उनके साथ भी कोई डिस्कस टॉपिक कर सकते हो। वर्किंग ऑन द IRC कैसे होती है? व्हेन यू वांट टू द चैट ऑन दैट पर्टिकुलर कनेक्शन, आपको चाहिए होगा इंटरनेट का विद द क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो इसका सबसे पॉपुलर है दैट इज MIRC जो है इसका सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा एक आइडेंटिटी देके सर्वर के साथ, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन आप विदाउट आइडेंटिटी नहीं कर सकते। सर्वर जो होते हैं कनेक्टिंग होंगे स्पैनिंग ट्री आर्किटेक्चर में, मतलब ग्लोबल वाइज आप कनेक्शन में होंगे, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज। आपका यूनाइटेड स्टेट्स में आपका एरा कहाँ पे आ रहा है कंट्री का, उस हिसाब से। और लॉकडाउन जैसे आप हो जाओगे, आइडेंटिटी अपनी दे दोगे, आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू द चैटिंग फॉरम्स, और आप उसमें जो भी डाल रहे हो, क्योंकि वो एक ग्लोबल सर्वे के ऊपर जा रहा है, एक कंट्री बेस्ड चीज नहीं रहेगी, ऑन द ग्लोबल नेटवर्क पे वो चली जाएगी। तो मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर स्पैनिंग ट्री सर्वर आर्किटेक्चर की हेल्प से शॉर्टेस्ट रूट से वहां पे डेस्टिनेशन तक जाएंगे जिस चैनल में आपने उसको डालना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं चैट टाइप की कि किस तरह का IRC है। IRC की मैंने अभी बात की आपसे कि चैट प्रोग्राम जो सोशल्स होते हैं MIRC और IRCLE के साथ हैं। वेब बेस्ड अगर आपने करनी है, जैसे आप मैसेंजर को यूज करते हो, उस तरह की चैटिंग करनी है, तो वेब ब्राउजर जैसे नेटस्केप है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस पे भी आपको मिल जाएगा। अमेरिकन ऑनलाइन चैट की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एक अवेलेबल है जो असेस देता है हमें वो यूनाइटेड स्टेट्स की ऑनलाइन IRCs के साथ। डायरेक्ट चैट प्रोग्राम्स में एंटर होना है तो ISQ AOL इंस्टेंट मैसेंजर है जो कि प्रोग्राम्स आपको इजीली मिल जाते हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में एंटर होना है तो CUSME एंड नेटस्केप एविगेटर नेट मीटिंग आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी पूरी, फिर आप उसमें एंटर कर सकते हो। डायरेक्टली कोई चैटिंग पर्पस में एंट्री नहीं हो सकती। चैट सर्वर जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं वो परमिट करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन जो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में एंटर हुए हैं, जैसे न्यूज़ ग्रुप्स में एंटर हुए हैं, कोई डिस्कशन चल रही है तो डायनामिक वॉइस एंड वीडियो सपोर्ट भी उसमें होगी। तो थ्री मेजर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्वर्स अवेलेबल है, EF नेट सर्वर, अंडरनेट सर्वर एंड द टेलनेट सर्वर। जो होस्ट का नेम होगा, मोस्टली कॉमन नेम होता है इंटरनेट के ऊपर, तो उस सर्वर का नेम ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स के कनेक्शंस में दिखेगा कि जिसने चैनल बनाया होगा उसका जो नाम होगा। फॉर एग्जांपल न्यूज़ ग्रुप्स में अगर द ट्रिब्यून एंटर हुई है तो उन्होंने अगर वो एक ब्रॉडकास्ट मीडिया आपको दिया है तो उसी का होगा वो। डिस्कशन फोरम में आपको कोई टॉपिक डालते हैं तो एफनेट, अंडरनेट एंड डेलनेट किसी सर्वर पे भी आप हो तो उसमें आप जा सकते हो। व्हेन वी टॉक पीपल फेस टू फेस, आप उसी के साथ फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे शेयर करते हो, स्माइलीज जो बेसिक स्माइलीज होती हैं, वाइडली यूज स्माइलीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी मैसेंजर्स पे आप यूज़ करते ही हो चीज़ें, वो भी इसमें पर्सनलाइज मैसेजेस में इजीली यूज़ हो सकती हैं। मिड गेट स्माइलीज हैं, मेगा स्माइलीज हैं, यूज नेट स्माइलीज हैं एंड इमोशनल स्माइलीज। कुछ भी आपने यूज़ करना हो तो आप नॉर्मली जैसे मैसेंजर में आज यूज़ कर रहे हो, ये एंट्री पहले दी थी उन्होंने तो फिर आपका होता है। मिड गेट में कंफ्यूज ना हो जाना, मिड गेट होता है जो छोटा लिटिल बिट कोई इमेजेस हो, छोटी छोटी इमेजेस, और जो आपकी मेगा स्माइल्स होती हैं वो बड़ा होगा। तो जो यूजनेट का अपना है, यूजनेट स्माइलीज जो होती हैं वो एक टेक्निकल पार्ट के ऊपर चली जाती है, क्योंकि यूजनेट स्माइली कोई वो स्माइली नहीं है कि कोई मीनिंगलेस, जैसे व्हाट्सएप का लोगो है, इंस्टाग्राम का लोगो है, ये यूजनेट स्माइलीज के अंदर आते हैं। इमोशनल स्माइलीज आपको इमोशंस के रिलेटेड कुछ भी देने हैं। हाँ जी, फायदा होता है इसका, एडवांटेजेस यही है IRC का कि एक तो आप डिसेंट्रलाइज्ड होते हो एंड अलाउ करते हो चैट को, फाइल शेयरिंग को, फ्लेक्सिबिलिटी है, रोबस्ट है, इजीली आप ये सॉफ्टवेयर अगर ऐड किया हुआ तो आप कहीं पे भी, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन फोरम में एंट्री हुई होती है तो कई बार फ्लडिंग की टेक्निक यूज़ हो जाती है कि बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स आर देयर कि अगर आपने कोई साइबर बुलिंग में एंटर कर गए हो, ऐसे किसी इन्वायरमेंट में डिस्कशन फोरम में एंटर कर गए हो जिसमें आपको एंटर नहीं करना था, आपको नहीं पता लगा, तो साइबर बुलिंग का इश्यूज हो सकते हैं। सो होप सो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। साइबर बुलिंग का टॉपिक डेफिनेटली इन द नेक्स्ट पार्ट डिस्कस होगा आपसे इन द शॉर्टर वीडियो। सो काइंडली इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप कोई भी कमेंट करके आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, देन डेफिनेटली रिप्लाई विल बी गिवन विद इन द 24 hours to all of you.
Hope so you all enjoy that particular tutorial in this particular channel, and if you feel that the channel is very helpful to all of you, kindly like, share and subscribe that channel and share with your friends and relatives to grab the good knowledge. So the next shorter video of the cyberbullying available very soon on this channel. Till then, take care, thank you and God bless you.